Hello students, I have a collection of very important question regarding board and previous year question paper. Previous year means the NEET question paper that is very important to you for your future. So without delay timing, let I introduce about the question paper. Actually this is a test for you and I will give you 5 seconds for each question. The question is first 12 question is MCQ type and the next 8 question is fill in the blank type. It means you have a set of total 20 question and rest 30 question will be discussed in next video section. So I give you 5 seconds for each question to think about the exact answer, and after 5 seconds I will make analysis regarding the answer, regarding the right answer. So without delay timing let I begin the question. रूल्स आप एक बार सुन लें. हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने सेकंड मिलेंगे? 5 सेकंड. 5 सेकंड के बाद जो राइट आंसर होगा, अगर आपका इमेजिन आंसर से वो मैच कर रहा है तो आप अपने लिए 1 मार्क्स पुट अप कर लीजिए. इफ देयर हैज़ an error in question, that is your imagination is wrong, then put 0 marks. Actually the whole test is based on chapter 4 that recently done by me, and different video lectures you can also understand about the very crucial and important concept regarding chapter 4. So let's begin the test. The first question is, here you can see, which of the following is hormone releasing? Hormone releasing means the devices. Your option is multiload 375A, LNG 20B, Lippes loop C, and copper 7D. Your time is over. Actually the multi-load 375 and copper 7 as well as copper T is a type of the copper releasing hormones. So option A and D do not have a chance for question number 1. Now back to the B and C. Actually the B and C, B is the right answer for question number 1, while C is the sperm phagocytic. Listen carefully, I have told you sperm phagocytic device that actually used for the feeding of degradation of sperm at the time of coitus. So if you have your imaginary answer is regarding the option number B, then put 1 mark for you, otherwise 0. Now back to the next question. The next question, question number 2 is, which among the following is commonly called withdrawal method? Let I introduce some withdrawal method. Actually withdrawal method is the natural method of contraception. The natural method of contraception means it is a method in which there is ejaculation is actually prevented before, that is coitus is prevented before the ejaculation. So I think my hints will be will help you. So you have 5 seconds and think about the right answer. Now let's check your answer. The right answer is coitus interruptus. Coitus interruption means there is a interruption in coitus. It means there is a prevention of ejaculation. Ejaculation is prevented. It means, let's check the whatever the answer of whatever the meaning of other option. Listen carefully. First option is lactational amenorrhea. Actually the method is help in the natural method of contraception when continuous milk feeding is done by the lady for about 6 months. It is effective only for 6 months and there is a no meaning of lactational amenorrhea for this kinds of question. Periodic abstinence, some of the period like 10 to 17 days of a period
of menstrual cycle is fertile period, and avoidance of coitus between the 10 to 17 days is actually help in the contraception. That is the another way of natural contraceptions. So question the option C is also important, but it is not exact answer for question number 2. Rhyme method is the another method. This is no meaning of the contraception. So option, if your option is B, then put 1 marks for yourself, otherwise you have a lot of chance apart from question number 2. Now back to the question number 3. In which of the following ARTs, assisted reproductive technologies, does in vivo fertilization occurs? In vivo means the fertilization that is in natural form. That is in natural form. So option is GIFT, zygote intrafallopian transfer, GIFT, gamete intrafallopian transfer, ICSI, intracytoplasmic sperm injection, and IVF, in vitro fertilization. Your option is, listen carefully, what happened exactly in GIFT? Actually, GIFT is related to the zygote intrafallopian transfer, in which the zygote artificially prepared in a lab by the artificial fusion of male and female gametes. So in the process of GIFT, the artificial process of fertilization is taken out. It means the in vitro fertilization is taken out. It is the part of in vitro. So option A will not in favor of question number 3. Now back to C, the next option, the gamete intrafallopian transfer. Actually, what happened in gamete intrafallopian transfer? The gamete, it means the sperm transferred to the fallopian tube in order to fertilization naturally. It means there is a natural fertilization occurs between the sperm and ova, where in the fallopian tube. So the option B is right. What happened in ICSI, that is sperm intracytoplasmic injection, that is in this process, the intracytoplasmic sperm injection, what happened, the ovum, there is the unfertilized ovum is allowed to fusion of sperm with the help of injection. So with the help of injection, the sperm is transferred to the directly to the surface of ovum in order to fertilize them. Now back to the next, the in vitro, there is the word meaning IVF means in vitro, so it is not a phenomenon of in vivo. So option number D, listen carefully, option number D, option number C, and option number A is not related to the question number 3. So the good option is, the right exact answer is the GIFT. If you have a right answer, then put 1 marks regarding question number 3 or 0. And I hope you should have counted. You should write your answer and your mark against in over the copy. Then finally I will ask you the total answer, that is total marks out of 20. Now next question is surgical method. Listen carefully. Surgical method, also called sterilization, technique or foolproof method to prevent pregnancy, but it is the last option for many couple, because कह रहा है कि ओवरऑल प्रोसेस, सर्जिकल प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है और ये फुल प्रूफ भी होता है. ठीक है, फुल प्रूफ मेथड भी होता है, बट ये ऑप्शन है, ये लास्ट ऑप्शन होता है. लास्ट ऑप्शन मीन्स when peoples remain fail to adopt the other method of contraception like the chemical method, intrauterine devices, etc., then they adopt the surgical method of contraception, either the tubectomy or vasectomy. So option is, it is nearly irreversible, of lack of sufficient facilities in many part of our country, of fears that it will reduce the sexual drive, all of these. Option is all of these. Many part of our country, there is the option B, many part of country actually
there is no facility of intrauterine devices and many chemical equipment that actually help in contraception. And option A, it is irreversible. As all know, there is the sterilization means it is a permanent method, it means it is irreversible. So what happen, there is option number A, B and C in favor of question number 4. So all of these will be correct. If you have a right answer, then put 1 marks, otherwise 0. Finally I will ask you regarding the answer. Question number 5. Emergency contraceptives are effective if used within. अब कह रहा है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कितने समय के लिए इफेक्टिव होता है. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मे बी आस्किंग इन एग्जामिनेशन. 72 hours of coitus, 72 hours of ovulation, 72 hours of menstruation and 72 hours of implantation. सब में 72 hours से कन्फ्यूजिव है, तो आपके पास 72 hours के बाद वाले कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है. चलो आपके पास, आप इस पे फोकस करके आंसर पुट अप करिए. लिसन, आंसर for question number 5 is A, 72 hours of coitus. Actually coitus is the period of ejaculation, and if there is ejaculation, there is a prevention of ejaculation, then the contraception will be continued. And if the ovulation or menstruation or implantation occurs, then there is a no chance of avoidance of pregnancy. It means the hormonal and any kinds of the contraceptives often used for 72 hours of coitus, and it is effective for 72 hours of coitus. So option A is right. If you have a right answer, then put 1 marks, otherwise 0. Now back to the next, the question number 6. Question number 6 is, condoms are one of the most popular contraceptive because of the following reasons. Option A, these are effective barriers for insemination. Option B, they do not interfere with the coital act. C, these help in reducing the risk of STDs. And D, all of the above. Next, that is option D is right, because not only it is a barrier method, condom not only a barrier method, it also prevent the risk of STD. So don't be confused regarding, if there is the 2 option, then absolutely all the above option will be exact. If you have doubt regarding any question, जैसे इस तरह के क्वेश्चन में अगर 2 ऑप्शन में आपको सही लग रहा है, तो आप बिना किसी हिचक के ऑल ऑफ दिस मार सकते हैं, ऑल ऑफ दिस को सही कर सकते हैं. ठीक है, इसमें आपको डाउट वाला, बीच में डाउट वाला है, जबकि 2 ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, तो ये ऑल ऑफ दिस होगा. अनडाउटली ये भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा. चलो आगे आते हैं. नेक्स्ट 7 नंबर, intensely lacting mothers, it is related to the lactation. Intensely lacting mother do not generally conceive ड्यू टू, अब ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कह रहा है कि लैक्टिंग मदर्स ये किस चीज़ के लिए कॉन्ट्रासेप्शंस में अपने आप को पार्टिसिपेट करती है. ऑप्शन है सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, सप्रेशन ऑफ गैमेटिक ट्रांसपोर्ट, सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन. 4 ऑप्शन है. ये लैक्टेशन मेथड में क्या होता है एक्चुअल में कि उसमें कॉन्ट्रासेप्शंस नहीं हो पाता है. वेरी गुड, आपको 1 मार्क्स मिलने वाले हैं. चलो ऑप्शन नंबर ए इज राइट. ड्यूरिंग, मैंने बताया था कि ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, लिसन केयरफुली, नॉट प्रोजेस्टेरॉन, हार्मोन प्रोलैक्टिन, हार्मोन प्रोलैक्टिन हैज 2 फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, एंड सेकेंड इट सप्रेस द GnRH. The GnRH means gonadotropin releasing hormones get separate, then it never affect to the pituitary, and then what happen, then there will be no gonadotropin will released out, means gonadotropin also get suppressed out. So option A is right. Put 1 marks if your imaginary answer is according to me, otherwise 0. Now next question number 8. The method of directly injecting of sperm into ovum is assisted reproductive, in assisted reproductive technologies is called.
कह रहा है कि डायरेक्ट अगर कोई इंजेक्शन मेथड का अगर इस्तेमाल हो रहा है स्पर्म को यूज करके, स्पर्म सही नहीं लिखा है, डबल एन कर दिया है, तो आप इसको फोकस मत करेंगे, ये स्पर्म है। डायरेक्ट अगर इंजेक्शन मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है किसके लिए, स्पर्म को पुटअप करने के लिए, तो वो प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, उस प्रोसेस को ART में क्या बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन है गिफ्ट, जिफ्ट, ICSI और एम्ब्रियो ट्रांसफर। किसी एक पे फोकस करना है, किसी एक का सही आंसर पिकअप करना है। चलो आगे आते हैं, समझाते हैं। ऑप्शन सी, ठीक है, अगर आपका सी ऑप्शन है तो 1 मार्क्स ऐड करिए, अदरवाइज 0 मार्क्स। नाम में अगर ये फुल फॉर्म, मैंने कहा था सबका फुल फॉर्म याद रखना है, तो ये नाम क्या है, ये क्या है, ICSI का इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, सॉरी कट गया, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। तो अब ये इंजेक्शन मेथड यहाँ पे आ गया, ठीक है। और बाकी में जो वर्ड है ये अलग अलग मीनिंग लिए हुए, जैसे ये क्या है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये क्या है, जिफ्ट, जिफ्ट में क्या, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ET का मतलब क्या हो गया, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर से। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ICSI। जितने लोगों ने ये सी ऑप्शन को इमेजिन किया था 1 मार्क्स ऐड कर लें, अदरवाइज 0, ठीक है। अभी भी आपके पास चांस, अभी भी आपके पास 12 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बाकी, यानी कि अभी आप जो है 12 आउट ऑफ 20 की रेस में रहेंगे। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मेनली कंटेन द हार्मोन, कौन सा हार्मोन्स होता है, इस्ट्रोजन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन एंड इस्ट्रोजन हार्मोन्स, इस्ट्रोजन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जल्दी से इसको बताइए, 5 मिनट 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलो, अगर आपने पुराना सभी वीडियो आप चैप्टर 4 का देखे हैं तो आप सही आंसर लगा रहे होंगे अभी तक, अदरवाइज आपके टेस्ट जो है आपके स्टडी पे डिपेंड करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन्स एंटागोनिस्टिक होते हैं किसके अगेंस्ट, LH और FSH के, इसलिए ये कॉन्ट्रासेप्शन के लिए फेवर करते हैं, बाकी ये सब जो है कोई मतलब नहीं इसका। तो ऑप्शन इसका बी होगा। जितने लोगों का बी ऑप्शन सही, 1 मार्क्स पुटअप कर ले, अदरवाइज वो अपने लिए क्या यूज करें, ये, ठीक है, 0। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। डायफ्राम आर द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज बाय द फीमेल, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट देम। कह रहा डायफ्राम जो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, फीमेल का है, ये आपको जानना है। इट इज जस्ट लाइक अ कंडोम यूज्ड एज द बैरियर मेथड। अब आपके 10 ऑप्शन में क्या है, दे आर रीयूजेबल, they block the entry of sperm, they are placed to cover the cervix, and all of these। चलो, अब आपके ऑप्शन में क्या है, रीयूजेबल, ठीक है। डायफ्राम क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो इतना जान लीजिए, डायफ्राम ऑलवेज प्लेस इन द सर्विक्स रीजन एंड इट ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म। इट मीन्स इट ऑलवेज कवर द सर्विक्स एंड ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म। इट मीन्स जैसे मैंने बताया था कि अगर 2 ऑप्शन आपको सही लग रहे हो तो अनडाउटली ऑफ ऑल ऑफ दीज को टिक करेंगे। तो ऑप्शन डी जितने लोग का सही है वो अपने लिए क्या कर लें, 1 मार्क्स जोड़ लें, और बाकी लोग समझ रहे हैं। चलो आगे नेक्स्ट। अब ये क्या है, अब ये आपके पास है जिफ्ट इज ट्रांसफर ऑफ, क्या भाई, क्या ट्रांसफर कह रहा है, जाइगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब, अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड ओवा इनटू फैलोपियन ट्यूब, अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड ओवा इनटू यूटेरस, एम्ब्रियो इनटू यूटेरस। चलो आगे आते हैं, समझिए इसको, 5 सेकंड का समय है। वेरी गुड, समझा। अगर आप इसकी मीनिंग जानते हैं, इसका फुल फॉर्म जानते हैं किसका, जिफ्ट का, तो आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो जिफ्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, जिफ्ट का पहले फुल फॉर्म निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये सबका फुल फॉर्म होता है जाइगोट, ठीक है, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बहुत सारे लोग फैलोपियन ट्यूब मार के चले आते हैं, ये गड़बड़ है। फैलोपियन
ट्रांसफर। तो आप यहाँ पे जिफ्ट से फैलोपियन ट्रांसफर और फैलोपियन ट्रांसफर से फैलोपियन ट्यूब निकाल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 1 मार्क्स आप जोड़ लीजिए, बाकी 0। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ क्या दिया है? सहेली। देखो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़, स्पेलिंग में गड़बड़ कर दिया है, सहेली। ठीक है, सहेली क्या है? एक अब ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर फीमेल है, सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड फॉर फीमेल, डायफ्राम फॉर फीमेल, सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड फॉर मेल। अब आपको सही ऑप्शन चुनना है। व्हाट इज सहेली? सहेली क्या है? आई होप आपने सही आंसर चुना होगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। इसको किसने डेवलप किया था ये भी पूछता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको CDRI डेवलप किया था। कहाँ है CDRI? ये लखनऊ में है। पूरा नाम क्या CDRI का? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आपको जानना है। रिसेंटली CDRI डेवलप सहेली ओरल पिल्स, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस ओवर द नॉर्मल ओरल पिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको डीप आपको बताया गया था, नोट्स में भी आपको मिला है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। जितने लोगों का ए सही है 1 मार्क्स पुटअप करे, बाकी 0। तो ये आपके MCQ सेशन खत्म हो गए। अब आपके शुरू हो रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको दिमाग लगाना है और इसमें एक सही ऑप्शन और रहेगा नहीं, इसमें आप अपने सही ऑप्शन को बनाएंगे और उसमें आप इमेजिनरी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को जज करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। अगर सही निकलता है या जो राउंड फिगर भी रहेगा मैं उसके बारे में बताऊंगा, तो आप अपने आप को फिर से आप 2 मार्क्स वहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 मार्क्स नहीं बल्कि 2 मार्क्स, तो ये 12 मार्क्स और लिसन केयरफुली 12 मार्क्स ये हो जाएंगे और बाकी 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे 16 हो जाएंगे। यानी आपके जो टेस्ट है वो कितने मार्क्स में हो जाएंगे? ये आपके 28 मार्क्स पे हो जाएंगे। ठीक है, तो वो 2 मार्क्स के लिए होगा। फिल इन द ब्लैंक्स कितने मार्क्स के लिए होगा? 2 मार्क्स के लिए। 28 में देखिए कितने लोग आपका, कितने मार्क्स आपके सही आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। इज द स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर कैरीड आउट इन मेल? क्या बताता है स्टेरिलाइजेशन? स्टेरिलाइजेशन मेथड इज अ परमानेंट मेथड। इट इज अ परमानेंट मेथड। वेरी गुड, अगर सोचे हैं तो सही है। क्या होगा बेटा? वैसेक्टॉमी। दिमाग में लगा लीजिए और भूलिएगा मत, ये किस में होता है? मेल में। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? वैसेक्टॉमी भराएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि इसका ट्रिक क्या है। वैसेक्टॉमी का शुरुआती वर्ड क्या है? वास से, और वास का रिलेशन किससे होता है? वासा डिफरेंसिया और वासा इफरेंसिया दोनों से होता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। इसमें आप अपने आप को 2 मार्क्स कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द इंसिडेंट ऑफ STPs, ये एक्चुअल में STDs होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि ये STP नहीं बल्कि क्या होगा सिलेबस में? STD। हालांकि आपके सिलेबस में STP है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है, लेकिन वो कहाँ है? वो चैप्टर 8 में है, चैप्टर 10 में है। ठीक है, तो ये क्या है? द इंसिडेंट ऑफ STP। यहाँ STP की जगह पे क्या लिख देंगे? द इंसिडेंट ऑफ STDs आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमॉन्ग पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ। ठीक है, कितने ईयर्स में, एज कितने से कितने एज ग्रुप में STDs के चांस ज़्यादा होते हैं? आपको पुटअप करना है। चलो बताया गया था आपको, अगर आप प्रिडिक्ट कर लिए हैं तो ऑप्शन आपका सही है। 15 to 24 ईयर्स एज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ऑप्शन सही हैं तो 2 मार्क्स, अदरवाइज कितना लगाना है? ये। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज अराउंड इन कब? 1900 में। दुनिया भर का पॉपुलेशन 1900 में कितना था? मींस 19th सेंचुरी में कितना था? चलो अब सही आंसर पे आते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज अराउंड कितना था? 2 बिलियन था। ठीक है, कब था वो था 1900 में। 2 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? होते हैं 2000 मिलियन। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट।
अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज, कितना परसेंट था भाई? आपने पढ़ाई किया है। चलो आते हैं, द आंसर इज 1.7%। ठीक है, पॉपुलेशन जो हमारा रेट है वो कैसे निकालते हैं, जितना पॉपुलेशन एक साल में इंक्रीज हुआ उतने अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। मान लो कि किसी 100 पॉपुलेशन पे 10 लोग एक साल में और बढ़ गए तो क्या होगा, 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 100 में 10 लोग और बढ़ गए तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज, जितने बढ़े रहेंगे उसमें जितना पॉपुलेशन टोटल रहेगा उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकल आएगा। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। 17 क्या पूछ रहा है, मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांस ऑफ मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। चलो अब ये प्रिंसिपल जो मेथड है वो अवॉइड करता है, क्या काम करने के लिए, वो स्पर्म और ओवम के मीट करने के लिए, मतलब स्पर्म और ओवम जो है मीट ना करें उसको अवॉइड करता है। कौन सा मेथड है? वेरी गुड, लिसन केयरफुली, ऑल बैरियर मेथड। ऑल बैरियर मेथड। इफ यू हैव if your imaginary answer is condom, diaphragm, cervix, that is walls, there are so many barriers, then your option is right, otherwise put 0 marks for you. Now next question number 18, is the oral contraceptives for female containing non-steroid preparation? चलो हिंट क्या दे दें, हिंट तो देना ही नहीं, आपको सही आंसर पुटअप करना है, अदरवाइज गलत यहाँ पे करेंगे तो कितना पाएंगे, 0। चलो सही आंसर क्या है, सहेली पिल्स। सहेली पिल्स डू नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट एंड इट इज नॉन स्टेरॉयड। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। द स्टैट्यूटरी बैन ऑन इज द लीगली चेक द फीमेल फिटिसाइड। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो स्टैट्यूटरी बैन है बट लीगली वो चेक किया जा सकता है? वेरी गुड, एमनियोसेंटेसिस बताया गया था, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस, ये आपको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका सही है तो 2 मार्क्स इसको पुटअप कर लीजिए। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, डे, अब कितना से कितना कौन कौन सा डे है ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड पीरियाडिक और कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। ये आपको कब बताया गया था, पीरियाडिक एब्स्टिनेंस वाले कॉन्सेप्ट में बताया था, वीडियो लेक्चर में ये अवेलेबल है। ठीक है, आपको जानना है। चलो राइट आंसर पे आते हैं, द पीरियड बिटवीन 10 to 17 डेज इज कॉल्ड फर्टाइल डेज। मैंने क्या बोला था, फैलोपियन ट्यूब में इतने से इतने समय के बीच में ये जो ओवर रहता है, ठीक है, ये जो ओवर रहता है ये वहीं पड़ा रहता है, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, और उसके चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन ज़्यादा है क्योंकि वो 10, जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है तो कभी कभी उसी टाइम पे रैप्चर हो जाता है, बट ये ऑफन 14 डे पे होता है। तो 10 से लेकर के 14 डे तो है ही, और बाकी टाइम 2-3 दिन मान लेते हैं एक्स्ट्रा, वो फैलोपियन ट्यूब में पड़ा रहता है, तो उस टाइम का जो फेज होता है वो क्या होता है, फर्टाइल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नहीं बल्कि आंसर क्या हो जाएगा, 10 to 17 डेज। अब आप 20 आउट में से जितना भी आंसर पाए हैं, जितना भी आपको मिला है एग्जैक्ट, बिना किसी चीटिंग के, आप मुझे अपना सही रिजल्ट बताएंगे व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू।